Okay, so today's topic is about triangles. Okay. So what do you mean by the term triangle? Triangle का मतलब क्या होता है? That is, it's a polygon, or you can say it's a closed figure. Made up of three line segment. So triangle means it's a closed figure that is made up of three line segment. Okay. So this is a triangle. Okay. It is made up of how many line segment? Made up of three line segment. Okay. So you can name a triangle as ABC, XYZ, or any letters here. Okay. So in this triangle you have 3 points. So how many points? 3. That is point A, point B, and point C. So after joining all the point from point A to B, then from point B to C, then from C to B, we have got the figure that is known as triangle, that has three sides. So which are the sides? The side कौन सा होता है? So first one is from point A to point B. So this is the side AB. Then second is from point B to point C. Then from point A to point C. Okay. So these are the sides of a triangle. And also we have the three angles. How many angles we have? Three angles, that is this line and this line makes an angle here. यहाँ पे एक एंगल बना रहे हैं जो लाइन AB है एंड साइड AC है, दोनों मिलकर यहाँ पे एंगल बना रहे हैं. That is angle A. And this line and this line दोनों मिलकर यहाँ पे एंगल बना रहे हैं. That is the angle B. And similarly this line and this line दोनों मिलकर एंगल C पे एंगल बना रहे हैं. Okay. So this is a basics of triangle. So after the definition of triangle, we have the types of triangle. कि triangles कितने types का होते हैं? Okay, चलो. Okay, the first type is you can classify on the basis of side. Okay, so we can classify triangle in the basis of two. That is on the basis of their sides and also on the basis of their angles. So first of all, we talk about on the basis. How can you classify or how can you differentiate a triangle on the basis of these sides? Okay, so on the basis of sides we have three types of triangle. Okay, the first one is equilateral triangle. क्या होता है? Equilateral triangle. So what is meant by the word equilateral? तो उसका नाम में उसका definition छुपा हुआ है. Eq means equi, मतलब that is equal, and lateral means its side. That is the sides are equal. Okay. Suppose एक triangle है. तो ट्राइंगल का नाम मैंने क्या लिखा है? ट्राइंगल ABC. तो जो ये ट्राइंगल है इसका लोग नेमिंग कैसे करते हैं? यू कैन राइट इट एज ट्राइंगल. देखो ट्राइंगल का जब भी नेमिंग करेगा तो हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि इसका ट्राइंगल को मुझे से देखना पड़ेगा. देन ट्राइंगल ABC. ओके, तो जब एक ट्राइंगल जिसमें कि सब साइड, द फर्स्ट साइड इज AB, then you have the second side BC, then the third side is AC. तो एक ट्राइंगल जिसमें कि all sides हम लोग का इक्वल होता है, so that triangle is known as an equilateral triangle. That is AB equals to BC
इक्वल्स टू सी ए। तो एक ट्रायंगल जहाँ पे हमारा जितना भी साइड्स है, थ्री साइड्स है, वो थ्री साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है, तो वो हमें क्या होता है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। ओके, एंड वन मोर थिंग, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल द एंगल्स आर आल्सो इक्वल। यहाँ पे जितना भी एंगल बन रहा है, दैट इज एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। यहाँ पे जितना भी मतलब एंगल्स बन रहे हैं, सब एंगल्स क्या होता है हमारा, इक्वल होता है, एंड दैट इज सबका मेजरमेंट कितना होता है, 60 डिग्री करके होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये सब पॉइंट हमें कुछ जानना चाहिए इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल एबीसी है, इसका ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट इज एबी इक्वल्स टू बीसी इक्वल्स टू सीए, एंड आल्सो ऑल द एंगल्स आर आल्सो इक्वल। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, दैट इज एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। तो तीनों एंगल्स भी क्या होगा, इन केस ऑफ इक्विलेटरल इक्वल होगा, दैट इज 60 डिग्री ईच। सबका मेजरमेंट होगा 60 डिग्री। ओके, चलो। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज आइसोसीलियस ट्रायंगल। आइसोसीलियस, ओके, मैं यहाँ पे डायग्राम वाला एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखो। तो ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल नाम मैंने क्या रखा, प्लीज मैंने इसका नाम एबीसी रखा है। ओके, सो एनी ट्रायंगल हुज एनी टू साइड्स आर इक्वल। एक ट्रायंगल जिसमें कि कोई भी दो साइड हम लोग इक्वल होते हैं, दैट इज सपोज मैंने मान लिया मेरा दो साइड्स ए बी है एंड द सेकंड साइड इज ए सी। तो ये दोनों साइड इक्वल है। जहां पे तीन साइड इक्वल होता है वो क्या होता है हम लोग का, इक्विलेटरल। और जहां पे दो साइड इक्वल होता है वो हम लोग क्या होता है, आइसोसीलियस ट्रायंगल। ओके, तो यहाँ पे फिर से इसका नेमिंग करना है, इन ट्रायंगल ए बी सी। हमेशा जब भी हम लोग ट्रायंगल का नेमिंग करेगा हमको ट्रायंगल का सिंबल यूज करना पड़ेगा। ओके, इन ट्रायंगल ए बी सी वी हैव साइड ए बी इक्वल्स टू साइड ए सी। ओके, तो क्या होता है, यहाँ पे जो साइड होता है दोनों साइड इक्वल है, ए बी इक्वल्स टू ए सी। तो यहाँ पे आइसोसीलियस का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक थ्योरम और इंपॉर्टेंट यू कैन कॉल इट प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रहा है। ओके, तो मैं उसको भी यहाँ पे ए पे एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो थ्योरम क्या होता है, द एंगल्स opposite to equal sides are equal। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम और यू कैन कॉल इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी, जो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो इक्वल साइड कौन सा है, यहाँ पे इक्वल साइड मेरा है ए बी और ए सी। तो जो डायग्राम है, डायग्राम में देखना है कि ए बी का अपोजिट में, अपोजिट मीन्स दैट इज फेस टू फेस। ओके, अब देखिए मेरे फेस टू फेस क्या है, मेरा फोन है। ओके, ये जो कैमरा है। ओके, सो इस ट्रायंगल में मुझे वही फॉलो करना है कि जो साइड ए बी है उसके अपोजिट में कौन सा एंगल है। ओके, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ए बी इक्वल्स टू ए सी। तो सबसे पहले लिखना है कि साइड ए बी का अपोजिट में कौन सा एंगल है। तो साइड ए बी मेरा ये है। ओके, तो ए बी का अपोजिट मतलब इसका फेस टू फेस कौन सा एंगल, इसका फेस टू फेस मेरा गिर रहा है एंगल सी गिर रहा है। ओके, तो चलो, तो ए बी का जगह में लिखना है मुझे नेक्स्ट लाइन में एंगल सी इक्वल्स टू, अभी नेक्स्ट क्या है मेरा, ए सी। ये है ए सी। तो ए सी का अपोजिट में कौन सा एंगल है, देखो ए सी का अपोजिट में मेरा है एंगल बी। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल बी भी क्या होगा, इक्वल्स टू एंगल सी। आइसोसीलियस में बस इतना याद रखना है कि दो साइड इक्वल होता है एंड जो दोनों साइड इक्वल होता है उसके अपोजिट में जो भी एंगल है वो एंगल क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। ओके, तो आइसोसीलियस की হয় আমাৰ যিকোনো দুটা সাইড সমান হয়, ইকুৱেল হয়। ওকে, আৰু যোন দুটা এংগলছ হয়, যোন দুটা সাইড ইকুৱেল হয়
তাতৰ অপোজিট তাতো মানে বিপৰীতৰ যোনটো আমাৰ এংগেল থাকে সেই এংগেলছ খিনি আমাৰ কি হয় ইকুৱেল হয় ওকে সো তার আমি এইটো প্ৰপাৰ্টি ইউজ কৰো যে এংগেলছ অপোজিট টু ইকুৱেল সাইডস আর ইকুৱেল তো ইয়াৰ উল্টাও হয় ওকে দ্যাট ইজ ইফ হেৰি হয় সাইডস অপোজিট টু ইকুৱেল এংগেলছ মানে এইটো এংগেলছ এটা কি আছে इक्वल है एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी है लेकिन इधर एंगल सी का अपोजिट में कौन सा साइड बाबू ए बी है और एंगल बी का अपोजिट में कौन सा साइड है ए सी है तो ये दोनों साइड इक्वल होते हैं ओके तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है एंगल्स अपोजिट टू तो इसको मैं लेटर क्लास में एक्सप्लेन करूंगा तब मैं तो मैंने भी जस्ट मतलब आया था बस बोर है ओके तो इसको लिख लो तुम okay now the third type of triangle is scalene triangle क्या होता है scalene triangle so जैसे कि हमने अभी पढ़ा है कि इसका all sides मतलब तीनों साइड इक्वल होता है वो होता है हम लोग का इस इक्विलेटरल जिसका दो साइड इक्वल होता है उसका बोलते हैं हम लोग आइसोसेलेस और जिसका कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है उसका नाम ही होता है scalene triangle okay तो एक ट्रायंगल में नाम दिया ए बी इक्वल्स सॉरी ए बी सी ओके तो इसके लिए क्या होता है एनी ट्रायंगल हुज नो साइड्स आर इक्वल कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होते हैं ओके सो दैट इज स्केलेन ट्रायंगल ओके तो साइड्स ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल्स टू ए सी एम आई क्लियर तो बहुत ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बहुत काम में आएगा ओके तो इसको नोट कर दीजिए बढ़िया से ओके तो नाउ तो हम लोग ने बेस्ड ऑन साइड्स तो हम लोग ने पढ़ लिया अभी नेक्स्ट हम लोग का है बेस्ड ऑन एंगल्स कि एंगल्स के हिसाब से हम लोग ट्रायंगल्स को कैसे डिफरेंशिएट कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं ओके द फर्स्ट वन इज acute angle triangle तो इसका नाम में ही है acute angle so what do you mean by acute angle क्या होता है जे any angle whose measurement is more than 0 degree but less than 90 degree तो ये होता है हम लोग का acute angle क्या होता है ये acute angle whose measure is more than 0 but less than 90 okay तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज होता है ओके ए ट्रायंगल हुज ऑल द एंगल्स तो एक ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल्स क्या होता है हम लोग एक्यूट होना पड़ेगा दैट इज लेस देन 90 बट मोर देन 0 डिग्री एग्जांपल देख लो अगर ये एक ट्रायंगल है मान लो एक ट्रायंगल एबीसी है ओके इन दिस ट्रायंगल मान लो मैंने ये एंगल को मैंने पकड़ लिया 50 डिग्री पकड़ लिया ओके और ये एंगल को मैंने 60 डिग्री पकड़ लिया और इसको मैंने कितना पकड़ना पड़ेगा 70 डिग्री ओके सो ये ट्रायंगल जिसमें क्या होता है जितना भी एंगल्स है तीन एंगल्स बन रहे हैं दैट इज एंगल ए एंगल बी एंड एंगल सी देखो एंगल ए का मेजरमेंट 60 है दैट इज मोर देन 0 बट लेस देन 90 एंगल बी का मेजरमेंट है 50 डिग्री दैट इज मोर देन 0 बट लेस देन 90 एंड एंगल सी का वैल्यू है 70 डिग्री ये भी क्या है उस मेजरमेंट इज मोर देन 0 बट लेस देन 90 तो दिस टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स आर नोन एज एक्यूट एंगल ट्रायंगल ओके चलो देख लो इसको Okay, so now the next one is obtuse angle triangle. Obtuse angle triangle. तो सेम यहाँ पे इसका नाम भी इसका छुपा हुआ है. So obtuse means आप हमने पढ़ा हुआ कि angle whose measurement is more than 90 से बड़ा होता है, but less than
180 degree is known as obtuse angle triangle. So in this case, obtuse angle होता है. Okay, so now एक triangle obtuse कब होता है? एक ट्राइंगल ऑब्ट्यूज तभी होता है जब उसका कोई भी एक एंगल, एनी वन ऑफ इट्स एंगल इज ऑब्ट्यूज. मान लो मैंने इसको 130 पकड़ लिया, जो एंगल बी है उसका मैंने मेजरमेंट पकड़ लिया 130 डिग्री. सो 130 क्या होता है? इट इज मोर देन 90 बट लेस देन 180. ओके, अगर कोई भी एक एंगल आपका ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, देन दैट ट्राइंगल इज नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. ओके, so now the next one is the right angled triangle. The right angle means सबको पता है क्या होता है. right angle means an angle whose measurement is 90 degree. कोई भी एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री होता है. ओके, so that is known as right angle. तो एक ट्राइंगल राइट एंगल कब होता है? जब one of its angle is right angle. तीन एंगल है ना, तो तीनों एंगल में से कोई अगर राइट एंगल बन गया, कोई भी एंगल अगर 90 डिग्री शो कर रहे हैं, देन दैट विल बी ए राइट एंगल ट्राइंगल. यहाँ पे देखो ट्राइंगल ABC में मैंने एंगल B का मेजरमेंट यहाँ पे 90 पकड़ा है. ओके, तो ये ट्राइंगल जहाँ पे एक ट्राइंगल 90 हो गया, so that is known as a right angle triangle. Okay, तो right angle triangle में थोड़ा कुछ जानना पड़ेगा, तो इसके हम बाद में करेंगे. ओके, सो ये होता है right angle triangle.